Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Nutrition in Plants. Introduction. In your previous class, you have read that all organisms require food to survive. Food is the source of energy which is needed to carry out all the basic life functions. For most living organisms, the immediate source of energy is the food they eat. This food can be traced all the way back to green plants, which use the sun's energy. Thus, all the energy used by plants and animals comes directly or indirectly from the sun. It supplies the nutrients required by the body for its overall development. The main nutrients required by all living beings are carbohydrates, fats, proteins, minerals, etc. Thus, nutrition is the process of taking in food and breaking it into simple and soluble form which can be easily absorbed by cells. देखिए आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए. तो एक्चुअल में फूड आपका क्या है, इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी. जो जितने भी बेसिक लाइफ फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है फूड, राइट. तो ज़्यादातर आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो फूड होता है उनका, वो आपका इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, राइट. अब ये जो फूड है ये मिलता है प्लांट्स से, एंड प्लांट्स को एनर्जी मिलती है सन से, जिसके बाद वो अपना खाना बनाते हैं. सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अपनी एनर्जी के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सन पे, क्योंकि ये जो है न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है जो बॉडी को चाहिए होता है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए. 1.1 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. Modes of nutrition means method of obtaining food by an organism. There are mainly two modes of nutrition in plants, autotrophic and heterotrophic. Let's discuss both methods of nutrition. Autotrophic nutrition. The word auto means self and trop means nutrition. Hence, autotrophic means self-nutrition or self-feeding. In autotrophic nutrition, plants make their own food using raw materials like carbon dioxide, water and solar energy. Green plants make their own food. They have the unique ability of trapping solar energy and converting it into chemical energy, which is stored in leaves in the form of food. This process is called photosynthesis. As green plants use the energy of the sun directly to make their own food, they are called autotrophs, and this mode of nutrition is called autotrophic nutrition. देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ऑटोट्रॉप्स के बारे में आप जानते ही होंगे. वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं. तो ये जो आपका प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, राइट. अब इसमें आते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं. वो क्या करते हैं कि ग्रीन प्लांट्स में आपका पता है आपको क्लोरोफिल होती है. क्लोरोफिल क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, देन उसको वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जो कि आपके लीव्स में स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ फूड. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए होंगे. ओके, अब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सन की एनर्जी को डायरेक्टली यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, और इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है. एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. Heterotrophic nutrition. The word hetero means others and trop means nutrition. This heterotrophic nutrition means nutrition obtained from others. In this mode, the organism uses food made by autotrophic organism directly or indirectly. Plants which do not make their own food and are dependent on others are called heterotrophs. अब देखिए heterotrophic nutrition का मतलब क्या है. न्यूट्रिशन दूसरों से obtain करना. इसमें क्या होता है, इस मोड में ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना तो खुद से नहीं बनाते हैं, बिकॉज ओनली ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड. तो इसीलिए ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं. दूसरे किस पे, किसी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पे, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली. 1.2 फोटोसिंथेसिस. All green plants make their own food by the process of photosynthesis. In this process, the solar energy is trapped by chlorophyll, a green pigment present in the leaves. This energy is used to combine water from the soil and carbon dioxide from the air. अच्छा, green plants, जितने भी green plants है ना, all green plants अपना खाना खुद से बनाते हैं. ओके, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. इस प्रोसेस में क्या होता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाता है. एंड सोलर एनर्जी को ट्रैप कौन करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्लोरोफिल. This is a kind of green pigment which is present in the leaves. The food made by this combination is a sugar called glucose, which is
used by the plant for growth and repair of its parts. It is stored in special areas in the roots and stems. Byproduct of the reaction, oxygen is released in the air and used by organism for respiration. अब देखिए जो ग्लूकोज है ये आपके स्टोर्ड हो जाता है, कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं, स्पेशल एरियाज होते हैं जो प्लांट्स के, लाइक आपके रूट्स है, स्टेम है, राइट. एंड जो बाय प्रोडक्ट होते हैं इस रिएक्शन की, ऑक्सीजन जो बचता है वो एयर में रिलीज हो जाती है और फिर जो ऑर्गेनिज्म है रेस्पिरेशन के लिए इसका यूज करते हैं. Photosynthesis is a complicated process, although an equation can be used to sum up what occurs. An equation is a scientist's shorthand for describing a reaction. The chemical equation that takes place during the process of photosynthesis is as follows. अब देखिए आपका जो photosynthesis है काफ़ी complicated process है और इसको reaction के थ्रू देखिए हमें बताया गया है. So the reaction is carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll gives glucose plus oxygen. CO2, this is the formula of carbon dioxide, water आपको पता होगा, this is the formula of glucose and O2 is oxygen gas. In photosynthesis, carbon dioxide enters the leaves through the stomata, which are small openings on the surface of the leaf. Each stomata is bound by two crescent-shaped guard cells. These cells draw water from the neighboring cells and swell up, allowing the stomata to open. This way carbon dioxide enters the leaf cells through stomata. अच्छा देखिए फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो स्टोमेटा के थ्रू एंटर करते हैं. स्टोमेटा आपको पता है ना, टाइनी पोर्स जो आपके लीव्स के साइड पे पाए जाते हैं, अंडर साइड. तो हर स्टोमेटा जो होता है वो दो क्रीसेंट शेप गार्ड सेल से आपके बाउंड होता है. दिस शेप इस तरह से होता है जैसे आपका क्रीसेंट मून होता है ना, दिस इज कॉल्ड क्रीसेंट शेप. तो इस तरह से वो आपका बाउंड होता है. तो ये जो सेल्स हैं ये वाटर ड्रॉ करते हैं नेबरिंग सेल से एंड उसके बाद जो स्टोमेटा होता है उसको अलाउ करते हैं कि वो स्वेल अप हो जाए, देन वो ओपन हो जाता है. और इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीफ सेल्स में एंटर करता है स्टोमेटा के थ्रू. Activity 1, to show that chlorophyll is essential for photosynthesis. Method: take a variegated leaf having some green parts, like that of garden croton or coleus. Boil the leaf in a test tube containing alcohol in a water bath. Test tube containing alcohol is not heated directly as it may catch fire. On heating, alcohol will turn green and the leaf will lose its color. This is called a denatured leaf. It is necessary to remove green color of the leaf before testing it for starch, as the green color marks the color change that shows the presence of starch. Wash the denatured leaf gently with water. Then dip it in iodine solution and keep it for some time. You will observe that only those portions of the leaf which were green turn blue-black in color. The non-green parts remain as before. This demonstrates that chlorophyll is essential for photosynthesis. अच्छा आपको क्या प्रूव करना है आपका कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इसके लिए आपको लेना है एक वेरीगेटेड लीफ, राइट. वो कैसी लीफ होती है आपकी? लीफ हैविंग सम ग्रीन पार्ट्स, मतलब ऐसी लीफ जिसमें आपके कुछ ग्रीन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि गार्डन क्रोटन या कॉलियस में होता है. सबसे पहले आपको लीफ को बॉईल करना है जिसमें आपका अल्कोहल होगा, राइट. एंड जो टेस्ट ट्यूब जिसमें आपका अल्कोहल है उसको डायरेक्टली नहीं हीट करना है, बिकॉज अल्कोहल इज इन्फ्लेमेबल, तो इट कैन कैच फायर. अब अल्कोहल जो है जब आप हीट करेंगे तो अल्कोहल जो है वो ग्रीन हो जाएगा और लीफ का कलर चला जाएगा. तो इसे कहा जाता है डीनेचर्ड लीफ. अब ग्रीन कलर को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें स्टार्च टेस्ट करना है, राइट. अब आपने क्या करना है कि जो डीनेचर्ड आपकी लीफ है उसको जेंटली वाटर से वॉश करना है, फिर उसको आयोडीन सोल्यूशन में डिप करना है, थोड़े टाइम के लिए रखना है. आप देखेंगे कि जो पार्ट आपका ग्रीन था, जो अपना कलर लूज कर चुका है, वो आपका क्या हो गया? ब्लू ब्लैक इन कलर. एंड जो नॉन ग्रीन पार्ट्स है वो तो सेम है, जैसे पहले था वैसे अब भी है. तो इससे क्या शो होता है कि असेंशियल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट. एक्टिविटी 2, टू शो दैट सनलाइट इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. मेथड: टेक अ हेल्दी ग्रीन पॉटेड प्लांट, keep it in the dark for 5 to 6 hours so that the plant can utilize the food or starch it has already prepared. This is called destarching. Select a leaf from the plant and fix a stripe of black paper on it with the help of paper clips. Now leave the plant in sunlight for few hours. Then pluck the leaf and remove the black paper stripe and test it for starch as discussed earlier.
the portion of the leaf that was wrapped in the stripe will not turn blue-black. This is because food was not prepared in this part of the leaf since it did not receive any sunlight. This demonstrates that sunlight is essential for photosynthesis. अब देखिए आपको ये शो करना है कि सनलाइट भी फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है. सबसे पहले आपको एक ग्रीन पॉटेड प्लांट लेना है विच शुड बी हेल्दी. इसको आप डार्क में रखेंगे 5 से 6 घंटे के लिए, ताकि प्लांट जो है जितना भी उसने फूड बनाया यानी स्टार्च जो ऑलरेडी वो बना चुका है वो उसको क्या कर ले, यूटिलाइज कर ले. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डी स्टार्चिंग. अब आपने एक लीफ को सिलेक्ट करना है प्लांट से और उसमें क्या करना है, आपने एक स्ट्राइप, ब्लैक पेपर की स्ट्राइप को फिक्स कर देना है. देखिए जिस तरह से आपको ये पिक्चर में नजर आया, राइट. अब आप क्या करेंगे, प्लांट को आपने अब क्या करना है, कुछ घंटे के लिए आप सनलाइट पे लेके जाइए. फिर आपने वो लीफ को प्लग करना है जिसमें आपने ब्लैक पेपर से उसको कवर किया था, स्ट्राइप लगाई थी. आपने उस लीफ को प्लग करना है और फिर आपने स्टार्च टेस्ट करना है जैसे आपने एक्टिविटी 1 में पढ़ा था, राइट. इसके बाद आप देखेंगे कि जो पोर्शन है ना आपका, देखिए ये जो पोर्शन था आपका ब्लैक स्ट्राइप में, इसका कलर चेंज नहीं होता है लेकिन बाकी का कलर चेंज हो जाता है. ब्लू ब्लैक कलर जब आपका आता है दैट मीन्स स्टार्च उसमें है, राइट. तो इस कलर में ये जो पोर्शन है ये ब्लू आपका ब्लैक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस पार्ट ने खाना नहीं बनाया था, बिकॉज इट वॉज कवर्ड विद अ ब्लैक स्ट्राइप, राइट. तो क्योंकि उसको सनलाइट रिसीव नहीं हुई, तो इससे क्या शो होता है कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. 1.3 parasites. Parasitic plants derive their food from others, hence they come under the category of heterotrophs. Parasites are plants or animals that live in or on other plants or animals and take food from these hosts. Dodder, mistletoe, mildew, fungi and many bacteria are some examples of parasitic plants. They usually have no chlorophyll and so cannot make their own food by photosynthesis. अब पैरासिटिक जो प्लांट्स होते हैं ना, अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं, तो ये भी आपके हीटरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं. तो पैरासाइट्स आपके प्लांट्स या एनिमल्स हैं, ये क्या करते हैं कि आपके जिस होस्ट प्लांट या एनिमल में ये रहते हैं ना, वहीं से अपना खाना डिराइव करते हैं. जैसे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, ऑल दीज आर पैरासिटिक प्लांट्स एंड बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं जो आपके पैरासिटिक होते हैं. तो अब ये जो प्लांट्स हैं ना आपके, इन पे क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसलिए अपना खाना वो खुद से बना ही नहीं सकते, तो ऑब्वियसली अपना खाना वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करेंगे इन ऑर्डर टू सर्वाइव. Parasitic organisms are unable to live a free life for long. They live in close contact with their host and are completely dependent on it for food. They give nothing in return. The host may in fact be severely harmed. Plants are usually ectoparasites as they live outside their host. They have suckers or piercing apparatus to penetrate the host and obtain food. Dodder, for example, sends suckers called hostoria into stem of its host and taps the host internal circulation. Some parasitic plants are capable of photosynthesizing in the green leaves, but they draw water and minerals from the host. They are called partial parasites. Mistletoe is a partial parasite. अच्छा देखिए, जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये मतलब फ्री लाइफ लंबे टाइम तक ये नहीं जी पाते. ये अपने होस्ट के क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं और कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं अपने होस्ट पे फूड के लिए, लेकिन बदले में ना वो कुछ नहीं प्रोवाइड करते. इंस्टेड कई बार क्या होता है, जो होस्ट होता है जिससे अपना खाना ये डिराइव करते हैं वो सीवियरली हार्म हो जाता है. प्लांट्स आपके होते हैं एक्टोपैरासाइट्स. दिस मीन्स ये अपने होस्ट के आउटसाइड रहते हैं. तो ये फिर इनके सकर्स होते हैं या पियर्सिंग अपैरेटस होते हैं जिससे कि होस्ट में पेनिट्रेट करते हैं और अपना खाना वहाँ से ले लेते हैं. जैसे कि डॉडर है, ये सकर्स को सेंड करता है जिन्हें कहा जाता है होस्टोरिया. ये होस्ट के स्टेम में उसे सेंड करते हैं और फिर वहाँ से अपना जो खाना है उसको डिराइव करते हैं. कुछ पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस तो कर लेते हैं क्योंकि उनके पास ग्रीन लीव्स होते हैं, बट उनके पास अदर रॉ मटेरियल्स नहीं होते, लाइक जैसे कि वाटर है या मिनरल्स है, तो वो होस्ट प्लांट्स उसको डिराइव करते हैं. तो ये आपके पार्शियल पैरासाइट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिसल्टो. 1.4 सेप्रोफाइट्स. Organisms which obtain their food from dead and decaying organic matter of dead plants, dead animals or rotten bread, etc. are called saprophytes. Sapro means rotten, so a saprophyte plant draws its food from rotten leaves, dead animals and household waste like rotten bread, etc.
Fungi like molds, mushrooms, yeast and many bacteria are saprophytes. We know that fungi and bacteria are kinds of plants. So we can say that saprophytes are plants which feed on dead and decaying organic matter. These are generally found at places with lots of dead and decaying organic matter. The fungus attacks and digests the dead plant matter by converting it into sugar, while the plant absorbs the nutrients from the fungus. Pine sap is a saprophyte. अच्छा देखिए, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं किसी डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे आपका डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स है, राइट. तो जैसे आपके ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके सैप्रोफाइट्स के, है ना. अब जैसे देखिए आपका फंजाई या जो बैक्टीरिया काइंड्स ऑफ प्लांट्स हैं, तो हम कह सकते हैं जो सैप्रोफाइट्स अपना खाना कहाँ से लेते हैं, डेड या डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से. जनरली जो आपके होते हैं जहाँ पे आपके ये वहीं पे पाए जाते हैं जहाँ पे आपके डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं. फंगस जो है वो क्या करता है, डेड प्लांट पे अटैक करता है, डाइजेस्ट करता है बाय कन्वर्टिंग इनटू शुगर. जबकि जो प्लांट है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब्स करता है फंगस से. पाइन सैप इज एन एग्जांपल ऑफ सैप्रोफाइट. Activity 3. Take a piece of bread and moisten it. Keep it aside in a corner at a warm place for 2 to 3 days. You will observe a white cottony mass growing on the bread. This is fungus, bread mold, which grows on bread and obtains nutrition from it. On finding suitable conditions, moisture and warmth, the fungal spores present in the air settle down on the bread mold. आपको ब्रेड का एक पीस लेना है, उसको मॉइस्चर करना है, फिर इसको एक कॉर्नर में रख देंगे आप किसी वार्म प्लेस पे 2 से 3 दिन के लिए. इसके बाद आप देखेंगे उसके ऊपर ना वाइट कॉटनी मास उस ब्रेड पे ग्रो करेगा. ये आपका फंगस होता है. और आपने जनरली देखा भी होगा कि ब्रेड को अगर आप जैसे भूल जाते हैं या साइड में रख देते हैं कहीं 2-3 दिन के, उसके ऊपर एक फंगस जम जाता है. ठीक है, ये आपका ब्रेड मोल्ड होता है जो आपका ब्रेड में आपका ग्रो करता है जब उसको न्यूट्रिशन उससे मिलते हैं. और जब सूटेबल कंडीशंस होते हैं जैसे कि मॉइस्चर भी मिल गया, वार्मथ मिल गया, तो जो फंगल स्पोर्स होते हैं ना एयर में, वो सेटल डाउन हो जाते हैं ब्रेड मोल्ड पे. की पॉइंट्स. In autotrophic nutrition, an organism makes its own food. Green plants are autotrophs. Remember that all green plants are autotrophs. In heterotrophic nutrition, the organism cannot make the food and obtains it from others. Chlorophyll is a green substance found in plants, especially in their leaves, which traps the sun's light energy. Parasites are plants or animals that live in or on other plants or animals and take food from their host. Saprophytes obtain their food from dead and decaying organic matter of dead plants, dead animals, or rotten bread, etc. Parasites and saprophytes are those plants which cannot make their own food. They depend on heterotrophic nutrition. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.